Now we will discuss uses of air. Why air is required by us? Air हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? First is for breathing. All of you know that all animals, even human beings, they respire or they breathe. हम सांस लेते हैं सब. ऐसे ही सारे animals they also breathe. So they take in oxygen. क्या animals क्या लेते हैं? During the process of breathing, they inhale oxygen. So oxygen is present in air. Second, plants also respire. They perform photosynthesis. So they require carbon dioxide for photosynthesis. So for breathing, air is required. Now for burning, oxygen is essential for burning. Oxygen supports burning. There is one experiment to prove that oxygen is required for burning. Take two lighted candles. दो कैंडल ले लें. Both lighted candles. And take two jars. और दो जार लें, एक बड़े साइज का और एक छोटे साइज का. Two glass containers basically, one of small size and one of big size. And you will notice, आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाली कैंडल बुझ जाएगी. This candle will stop burning. Why? And this candle, वो वाली कैंडल जलती रहेगी, लेकिन ये वाली कैंडल बंद हो जाएगी जलने से. क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर ऑक्सीजन थी इस जार के अंदर वो अब खत्म हो गई है. नाउ ऑक्सीजन इज द गैस दैट सपोर्ट बर्निंग एंड दैट इज नॉट प्रेजेंट, देन बर्निंग विल स्टॉप. सिमिलरली इन दिस ग्लास कंटेनर ये कैंडल देर तक जलेगी क्योंकि इस कंटेनर का साइज बड़ा है और जो एयर इसके अंदर प्रेजेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में है. दैट मीन्स इफ मोर एयर मीन्स मोर ऑक्सीजन, सो दिस विल लाइट फॉर सम मोर टाइम. This proves that oxygen is required for burning. Oxygen is a gas that supports burning. Now for providing nutrients, all of you know that 78% of the air is nitrogen, but जो animals या plants हैं वो उस free nitrogen को नहीं ले सकते directly. First, that nitrogen has to be converted into nitrogenous compounds. जो free nitrogen है उसे direct use नहीं कर सकते. This nitrogen has to be converted into nitrogenous compounds. कुछ बैक्टीरिया होते हैं एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया. Like rhizobia bacteria that help in converting this free nitrogen into nitrogenous compounds. And this rhizobium bacteria is present in the root nodules of leguminous plants. कुछ plants होते हैं उनकी roots में present होता है bacteria, rhizobium bacteria. Special plants होते हैं कुछ. So this rhizobium bacteria this convert this free nitrogen into nitrogenous compounds. और जो plants हैं उसके roots में present होता है वहाँ पे बनाता है. तो ये कहाँ जाती है nitrogenous compounds? Plants. These nitrogenous compounds are taken by plants. और प्लांट्स को कौन ईट करता है प्लांट प्रोडक्ट्स को? ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. सो थ्रू दिस प्रोसेस दिस नाइट्रोजन वी कैन टेक. सो एज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर, सो एयर हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स. नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग फायर. एयर ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग फायर. ऑल ऑफ यू नो दैट ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग बट नाइट्रोजन दैट do not support burning. Nitrogen क्या करती है? Help in controlling forest fires and all those sort of things. So nitrogen is the gas that do not support burning. So nitrogen is used to control fire. कई बार ऐसा होता है कि forest में fire लग जाती है तो कैसे कंट्रोल करते हैं उसे?
by spraying nitrogen we can do this, or by spraying water. For food, now air is also required for food. How air is required for food? अब एयर कैसे हेल्प करती है खाना बनाने में? Yes, plants they require carbon dioxide for photosynthesis, और प्लांट्स ही तो मेन प्रोडक्ट हैं जिनसे सबको खाना मिलता है. आइदर वी ईट प्लांट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली और वी ईट एनीथिंग दैट इज मेड थ्रू प्लांट्स. वही तो खाते हैं हम. इवन एनिमल्स दे ईट प्लांट्स. हर्बीवोर को कौन खाता है? कार्निवोर. और कार्निवोर इज द हाईएस्ट. ऑल ऑफ यू नो प्रोड्यूसर, then we have herbivores, then we have carnivores. So plants are the basis of all food material. Either we eat plants directly or we eat plant indirectly. So सारे फूड का सोर्स कौन है? प्लांट्स. और प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन एयर. नाउ दीज आर यूजेस ऑफ एयर. नाउ वी विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. Air occupies space. If we inflate a balloon, we fill air in a balloon. हम बलून में क्या फिल करते हैं? एयर. तो बलून कैसा हो जाता है? बड़ा. That means air occupies space and air has weight. अगर आप 2 बलून्स को लें और एक वेइंग मशीन ले लें, टेक 2 बलून्स, एक वेइंग मशीन लें और 2 बलून्स इन्फ्लेट करके 2 थ्रेड से टाई कर दें ऐसे. यू विल सी दोनों बलून क्या होंगे? इक्वल साइज के. इफ दे आर ऑफ इक्वल एयर फिल करेंगे आप दोनों में तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे. लेकिन आप एक बलून को प्रिक कर दें विद अ पिन, फिर क्या होगा? देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? फिर आप देखेंगे कि ये बलून ऊपर चला गया, और ये क्या आ जाएगा? नीचे. वाई? बिकॉज दिस इज हैवियर नाउ, इट कंटेन्स एयर. सो दिस प्रूव्स दैट एयर हैज वेट एंड एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑल्सो. देर इज सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन हम उसे फील नहीं करते. बट एयर एक्सर्ट सम प्रेशर. एग्जाम्पल इज डॉक्टर सिरिंज और अ वाटर गन इज एन एग्जाम्पल दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. इसी की वजह से हम डॉक्टर सिरिंज में मेडिसिन को फिल कर पाते हैं, और इसी वजह से जो वाटर गन है उसमें भी हम पानी भर पाते हैं ड्यू टू दिस एयर प्रेशर. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर.